Good afternoon, students. Today we'll Good do afternoon. some questions of JEE Mains and Advanced. First, I will start with JEE Mains questions of kinematics, which came this year, and then we'll solve some recent year JEE Advanced problems today. And if you have doubts and questions from SC Verma or other topics, we'll discuss it by the end of the class. So here is your first question. Start solving it. Once you are done, you can reply the option number in chat. And I don't think it's a difficult problem. All it takes will be, for you, it will be taking only some time, the theory for it. Sir, do you have to write the question? No, I will be sending you this PDF. Now you can download it from the uh, that folder, homework folder. अभी के लिए सिर्फ सॉल्व करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है. Think of it like you're in exam. हो जाए तो आंसर चैट में रिप्लाई करना है. एंड आई वांट एवरी स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and write an option in the chat. ये सारे इस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं 3 जेईई मेंस एग्जाम में, उनके क्वेश्चंस. Anyone got the correct option for the first one? Okay, take 2 more minutes. इतना difficult तो नहीं है. It's a graph, you know that the graph is like this. तो मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का. तो dy by dx 0 करके I can find the value of y. I can find the value of x, then I can find the value of y, जहाँ पे x मैक्सिमम है. y मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है h के लिए. Anyone got the answer? Okay, Bharvi got the answer. All other students, please try. I don't think this question is very difficult. यहाँ पे dy by dx को सी tan थीटा के लिए कंपेयर कर लेंगे. यहाँ पे tan theta is alpha, so alpha is tan theta, and then maxima वाला पॉइंट ही मैक्सिमम हाइट होगा. सो दिस इज y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू r/2 हो जाए, या dy by dx जब 0 हो जाए तो वहां से x निकल जाएगा. तो x को y वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा y आ जाएगा.
y max आ जाएगा, y max ही h हो. Okay, Vaishnavi and Bharvi, they have given me the answer. Other students, solve it quickly. Next question is this one. जिनका first हो गया, solve it the second one. किसी को doubt है, then ask. So in here, alpha is tan theta. From here, we get our theta is equal to tan inverse alpha. तो दो ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल आउट हो गए. इन दोनों में से चेकआउट कर लो. अल्फा माइनस 2 बीटा डिवाइड बाई dx फाइंड आउट किया तो अल्फा माइनस 2 बीटा x आ जाएगा. इसको जीरो करना है. ये जीरो कब होगा? x इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 बीटा पर. सो ये उल्टा वाला पैराबोला है, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ जाएगा. आई डोंट नीड टू चेक मैक्सिमा के लिए. So just put the value of x as alpha by 2 beta. So alpha into alpha by 2 beta minus beta into alpha by 2 beta का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर by half minus 1 by 4, that will be 1 by 4. So alpha square by 4 beta आ जाएगा. That will be your maximum height. So fourth option is correct. First one is wrong. After this, solve the second one. I think second वाला ग्राफ बना के करेंगे तो शायद जल्दी हो जाए. इसके बिना भी कर सकते हैं. Naman, we are doing previous year JEE questions. This one is all these questions are the questions which came in JEE Mains this year. Start solving these questions. Don't need to note it down. Just look at the question and solve. Sir, E1 and E2 are accelerations, right? फर्स्ट केस में एक्सेलरेट्स लिखा है, सेकंड केस में रिटार्ड लिखा है, तो वो दोनों एक्सेलरेशन. प्रश्न में ऑलरेडी गॉट दिस. Kushagra, Nirmit, Naman, you are not giving the answers. निर्मित सेकंड वाला हो गया. Nice. कुशाग्र, क्वेश्चन नंबर 2. So, okay, I'll just give you a hint. So
Yes, scooter accelerates from rest to time t1. तो t1 टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, आ, अगर मैं vt ग्राफ बनाता हूँ तो वेलोसिटी 0 से vt1 at1 हो जाएगी ना। ग्राफ की जरूरत नहीं है इसमें, I guess। ऐसे भी कर सकते हैं। सो t1 टाइम के बाद वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस at1, दैट विल बी a1 t1। ठीक है, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा। फिर उसके बाद t2 टाइम पे रेस्ट पे आ जाता है, रिटार्ड करता है t2 टाइम पे। तो टाइम हमेशा बढ़ेगा t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 टाइम पे क्या होगा, इतनी इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेट अस कॉल दिस एज u। तो u माइनस a2 से रिटार्ड कर रहा है, u माइनस a2 t2। और कम स्ट्रेस तो v0 हो जाएगा। सो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 t1, एंड दिस विल बी a2 t2। तो यहाँ से आ जाएगा t1 बाई t2। मुझे सिर्फ हिंट देना था, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं। t1 टाइम में एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर t2 टाइम में डी एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी कम होकर 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन मतलब स्लोप यहाँ पे है a1, यहाँ पे स्लोप है a2। तो ये जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी a1 t1, और ये दूसरी हाइट हो जाएगी a2 t। दोनों बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से हाइट। ये vt ग्राफ है, तो ये सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। In question number 3, a stone is dropped from the top of a building. Let us say the height of the building is h, because that is asked to us, and 5 meter below. When it crosses a point 5 meter below, then what is done? Another stone starts to fall from a point 25 meter below the ground. And they reach at the same time. Okay. So time taken from here to here is same. So g को 10 एज्यूम कर सकते हैं, एंड वी नो कि हाफ जी टी स्क्वायर मतलब 5t स्क्वायर, बस यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगा ही होगा, है ना। 5 मीटर ट्रैवल करने में 1 सेकेंड लगा होगा। उसके बाद जो टाइम लगेगा दैट वी कैन कैलकुलेट। तो 1 सेकेंड के बाद मीन्स टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये बॉल को रिलीज किया यहाँ से, एंड टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंच गया, एंड देयर इज अनदर स्टोन विच इज ड्रॉप्ड व्हेन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और दोनों साथ में दे आर फॉलोइंग। सो लेट अस से यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम ऑफ फॉल है दैट इज टी। टाइम ऑफ फॉल इज, लेट अस कॉल दिस एज कैपिटल टी। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी हो जाएगा कैपिटल टी। एच हाइट फॉल करने के लिए, द टाइम दैट यू नीड इज हाफ जी टी या फिर 5। यहाँ से आप फॉल करने का टाइम है कैपिटल टी,
So this will be t plus 1 का square. And h minus 25 यहाँ पे कितना फॉल करेगा, h minus 25 डिस्टेंस. So h minus 25 फॉल करने का जो टाइम होगा that is t. So 5t square. ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. The easiest way to solve this would be कि I will just divide h divided by h minus 25. That would be t plus 1 by t का whole square. It's better if I subtract this equation. H eliminate हो जाएगा. I'll subtract this equation from this equation. That will give me 25. 5 2t plus 1. तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी that will be 5 minus 1 4. t is equal to 2 सेकेंड. तो h आ जाएगा 45. So second option is correct. Vaishnavi gave me the correct answer for this one. ठीक है. Try question number 4. ये वेक्टर का क्वेश्चन है. This question was asked in physics. You have to be smart about it. AB plus AC plus AD plus AE vector ये find out करते हैं. So try to find a general pattern in this question. नमन थर्ड वाला का आंसर बताया या फोर्थ वाले का? सी ऑप्शन. सर थर्ड वाल फोर्थ वाले का. फोर्थ वाले का सी ऑप्शन आ रहा है. ठीक है. हाँ करेक्ट है सी हाँ ऑप्शन. सर. हाँ करेक्ट है correct. अदिति क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व.
No, sir. Are you still trying or should I solve? सर मैंने ट्राई किया लेकिन आया नहीं आंसर. तो मुझे इन सारे वेक्टर्स का सम चाहिए ए बी प्लस ये ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच. और मुझे सिर्फ ओ ए वेक्टर गिवन है. Naman, tell me, how did you solve this? Naman, सर can you- 8. क्या 8? सर सर 8 वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था. ऐसे सॉल्व कर लिया, सीधे आंसर आ गया. गुड ट्रिक, बट इसके पहले पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए. मतलब बहुत सही आंसर है. मतलब 8 से मल्टीप्लाई किया, बट 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो रीजन गलत दिया कि 8 वेक्टर से, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही है. मुझे सिर्फ AO वेक्टर गिवन है. AO वेक्टर. सो AB प्लस AC ऐड करना हुआ तो डिफिकल्ट हो जाएगा. And I need AB plus AC plus AD plus AE plus AF plus AG plus AH. तो ऐसे डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसको. अच्छा, इतना जरूर लिख सकते हैं कि ओ ओ वेक्टर जो हमारा जीरो वेक्टर है, दैट विल बी ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एफ. ऐसा जरूर लिख सकते हैं हम ओ ओ या जीरो वेक्टर को. इन सबका सम जीरो हो जाएगा, है ना. बिकॉज ओ ए वेक्टर को ओ ई कैंसिल आउट कर देगा, ओ बी को ओ एफ कैंसिल आउट कर देगा, ओ सी को ओ जी कैंसिल आउट कर देगा, ओ डी को ओ एच कैंसिल आउट कर देगा. सो वी कैन राइट लाइक दिस. अब कन्वर्ट करने का ट्राई करता है. ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस ऑफ ए ओ वेक्टर. तो ये जीरो है, ये माइनस ऑफ ए ओ वेक्टर. फिर अगर ओ बी वेक्टर को लिखना चाहेंगे, फिर सी ओ बी वेक्टर ये वाला वेक्टर है.
सो ओ बी वेक्टर को लिख सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे ही रह देते हैं, ओ ए की तरह ही रह देते हैं, आई थिंक दिस विल बी बेटर। सो ओ बी वेक्टर को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, ओ बी वेक्टर हो जाएगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। फिर ओ सी वेक्टर को लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ सी, हाँ ओ बी प्लस बी सी, लाइक दैट। या ऐसे जाना चाहे तो ओ ए प्लस ए सी, दिस विल बी ओ ए प्लस ए सी। फिर ओ डी वेक्टर लिखना चाहे तो दैट विल बी ओ ए प्लस ए डी, दिस विल बी ओ ए प्लस ए डी वेक्टर। फिर सिमिलरली ओ ई वेक्टर हो जाएगा ओ ए प्लस ए ई, मीन्स ओ से ई जाना है तो पहले ओ से ए जा सकते हैं, फिर ए से ई आ सकते हैं, दैट विल बी ओ ए प्लस ए ई वेक्टर। ओ एफ हो जाएगा, फिर ओ एफ हो जाएगा ओ ए प्लस ओ एफ, ओ ए प्लस ए एफ। ओ जी वेक्टर हो जाएगा ओ ए प्लस ए जी। एंड ओ एच के लिए ओ ए प्लस ए एच। तो बड़ा सही आ रहा है ना, ये पूरा आ जा रहा है, हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड है ये यहाँ पे आ जा रहा है। और ये क्या हो गया 8 टाइम्स ओ ए वेक्टर। तो अगर मैं इसको पूरे को लिख देता हूँ पी वेक्टर, ये जो मुझे चाहिए, तो ओ वेक्टर हो जाएगा 8, 0 हो जाएगा ओ 8 टाइम्स ओ ए वेक्टर प्लस हमारा पी वेक्टर, ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर। तो पी वेक्टर हो जाएगा -8 टाइम्स ओ ए वेक्टर, दैट इज 8 टाइम ए ओ वेक्टर। और नंबर ने जैसे सॉल्व किया था कि हाँ 8 टाइम्स होना चाहिए, तो वो करेक्ट है, बट रिजल्ट बड़ा सही नहीं बताया कैसे आ रहा है। तो 16 आई का प्लस 24 जे का माइनस 32 के का, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। Okay, sir, got it. हम्म। नमन तुक्के तो बड़े सही मार रहे। There was one of my friend ना, मतलब one of my classmate who got into IIT and he said कि मैं तुक्के मार के आया हूँ, and he was the highest scorer of math in our college, and nobody believed him, मतलब he said कि मेरा तुक्का मार के इतना ज्यादा नंबर है, but proofs पे हमारा एजुकेशन बेस नहीं करेंगे हम। Try to Naman, try to focus on how we did solve it, note it down, और ये अप्रोचेस हैं हेल्प करेंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो रहा होगा कि अच्छा अरे ये क्वेश्चन तो अभी नहीं हो पाया, जेई में इसमें आया हुआ है फिर भी नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं सोचना, अभी प्रैक्टिस करते करते वेक्टर्स से कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो कोई ना कोई वे निकल जाता है। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसका हो जाए रिप्लाई इन चैट, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो शाद्र हो गया, देन अर्जुन, नमन का फिफ्थ वाला भी हो गया। नमन सिर्फ मुझे मैसेज करना है, सबको मैसेज नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व इट। आई थिंक फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है बट सोल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। राइट। सिक्स वाला आई गिव यू अ हिट, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं, थर्ड वाला फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स, तो शायद ये यूज करने में फायदा हो जाए, बट यू ट्राई योर ओन मेथड।
See, question number 5 में engine of the train moving with uniform acceleration passes the signal post with velocity u and last compartment with velocity v. So third equation of motion इसमें बड़ा useful रहेगा. And instead of seeing मतलब पोल के पास खड़े होके इंजन को ऑब्जर्व करने से अच्छा है कि इंजन के पास खड़े होके पोल को ऑब्जर्व करें, है ना. अगर अंदर से पोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा. तो हम पोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब मैंने पहले पोल को ऑब्जर्व किया तो लेट अस से मींस वो स्पीड यू से जा रहा था पीछे. फिर दूसरी बार पोल को ऑब्जर्व किया तो वो वी से जा रहा था पीछे, और जो ट्रेन है वो आगे एक्सेलरेट कर रही है. या ऐसे कह सकते हैं कि पोल पोल एक्सेलरेट कर रहा है पीछे के डायरेक्शन में यू से वी. तो मुझे मिड पॉइंट का, दैट इज अगर टोटल लेंथ एल है तो मुझे एल बाई टू पे कितना एक्सेलरेशन है, एल बाई टू पे कितनी वेलोसिटी है वो चाहिए. लेट्स कॉल दिस वेलोसिटी एज वी एट मिड पॉइंट, तो वी एम. तो एल लेंथ पे वेलोसिटी यू से वी हो गई, तो मैं ये रिलेशन तो लिख ही सकता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AL. तो मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी यू स्क्वायर प्लस 2A. एल की जगह एल बाई टू में इतनी वेलोसिटी गेन कर ली, है ना. तो यहाँ से 2AL की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, या AL की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस AL. तो यू स्क्वायर AL की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू. So this should be v square plus u square by 2. अच्छा, ये vm square होना चाहिए, तो vm आ जाएगा रूट ओवर दिस क्वांटिटी. तो या तो ट्रेन में बैठ के पोल को ऑब्जर्व कर लें या पोल पे बैठ के ट्रेन को ऑब्जर्व कर लें, एक ही बात है. तो अगर आप ट्रेन में बैठ के पोल को ऑब्जर्व करूंगा तो जितने स्पीड से ट्रेन जा रहा होगा उससे उसका जस्ट ऑपोजिट अपीयर होगा पोल. पोल पहले पीछे u से जा रहा था, फिर v से जा रहा था. अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन l है, सो l बाई टू पे मिड पॉइंट होगा, एंड उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, दैट वी हैव टू फाइंड. Let us solve question number 6 now. The particle is projected with this much velocity. It's this. So initial velocity is given. Particle की initial velocity that is at t is equal to 0. Speed is v0. And along the x-axis, a damping force. Damping force मतलब deceleration होगा. So damping force is proportional to the square of the distance from the origin. ma is minus alpha square. So a को लिख सकते हैं minus alpha x square. I think m लिखा नहीं होना चाहिए because option में m नहीं आ रहा. So acceleration is just proportional to the negative of x square. m नहीं होना चाहिए था यहाँ पे. Let us see. अगर m cancel out हुआ तो change कर लेंगे अपने. So acceleration is given, initial speed is given. So we can write acceleration as v dv by dx. v dv by dx.
that is minus alpha x square. अब मुझे वेलोसिटी पता है दोनों पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पोजीशन निकालना है, डिस्टेंस व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स. सो इसको इंटीग्रेट करेंगे. जब x 0 था, लेट अस से दिस पॉइंट इज ओरिजिन, तो x 0 था, तो वेलोसिटी वाज v नॉट. एंड x जब स्टॉप हो जाएगा, तब x की वैल्यू लेट अस कॉल इट एज maximum x maximum value, call it something as l distance travel किया, तब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इंटीग्रेट करेंगे, v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv, दैट विल v स्क्वायर बाय 2 from v naught to 0, and this will be alpha x cubed by 3 from 0 to l. So upper limit minus lower limit, that will come out as minus v naught square by 2. माइनस साइन बाहर ले लिया तो दिस विल कम एज अल्फा l क्यूब बाई 3. तो यहाँ से निकाल सकते हैं l की वैल्यू. l विल बी 3 by 2 v naught square का पावर 1 by 3. Let us see if this matches. L is equal to 3 by 2, 3 by 2, 3 by 3 नहीं होगा, 3 by 2 v naught square by alpha, v naught square alpha बोलते हैं क्या, अच्छा यहाँ पे alpha भी है, तो v naught square by 2 alpha, so v naught square by 2 alpha power 1 by 3. पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है. So a person is swimming with this speed of 10 meter per second at an angle 120 degree with the flow. So जो water का flow है that is along this, and इससे 120 degree angle बना के the person is swimming. This is velocity of river with respect to ground. This is velocity of man with respect to river. So the question is the speed and reaches to a point directly opposite to on the other side of the river, है ना. तो ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला हो गया. अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जस्ट वर्टिकली अपोजिट वाले पॉइंट पहुंच जाते हैं. So velocity of man with respect to ground, that will be velocity of water with respect to river plus velocity of river with respect to ground. तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करके थर्ड वाला आना चाहिए. तो ऐड करने के लिए इसके सॉरी वाटर नहीं मैन लिखना चाहिए. हाँ, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है. तो ये वाला वेक्टर ऐड करके ऐसा आना चाहिए कि ये थर्ड वाला वेक्टर स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर हो जाए. तो ये 120 डिग्री है, तो ये ऑफ कोर्स 60 डिग्री होगा. एंड पर्सन इज स्विमिंग विद स्पीड 10, तो ये वाला साइड 10 है, ये वाला साइड 10 है. एंड वैल्यू ऑफ क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द फ्लो, दैट विल बी 10 cos 60. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट विल बी 10 cos 60. तो ये 5 आ जाएगा. Let us do some more questions now.
Next is question number 8. ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, you can do it. क्वेश्चन नंबर 8 जो है ग्राफ से बड़े इजी वे में कर सकते हैं। सो वीटी ग्राफ बनाएंगे तो पहले एक्सेलरेशन अल्फा है, तो लेट अस से टी नॉट टाइम के लिए अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बी अल्फा टी नॉट, एंड फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है और टी टाइम पर डी एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बेस हो जाएगा दैट इज व्हाट, दैट इज टी माइनस टी नॉट। सो टी माइनस टी नॉट टाइम के लिए डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो स्लोप पता है मुझे बीटा, सो इसका हाइट लिख सकते हैं कितना, बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो अल्फा टी नॉट इज इक्वल टू बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ से टी नॉट की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। सो टी नॉट विल बी बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो इतने टाइम पे ये व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, और मुझे अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी नॉट की वैल्यू पता है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अल्फा टी नॉट हाइट है, टी नॉट बेस है, दिस विल बिकम अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा टी माइनस टी नॉट भी अल्फा टी नॉट के इक्वली है। तो अल्फा टी नॉट हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा टी माइनस टी। तो टी माइनस टी नॉट को यहाँ से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस विल बिकम अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई 2, और टी माइनस टी नॉट आ जाएगा अल्फा टी नॉट बाई बीटा। यहाँ से सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पे आ गया अल्फा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, टी नॉट स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बिकम 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। फिर टी नॉट को यहाँ से पुट कर देंगे। सॉल्व दिस एंड टेल मी द आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर ये समझा नहीं। अच्छा, सी कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ टाइम के लिए डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा, इसका जो स्लोप है वो अल्फा दिया हुआ है, एंड मैंने अज्यूम कर लिया कि टी नॉट टाइम तक के लिए एक्सेलरेट कर रहा है और बाकी टाइम के लिए डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर टी नॉट टाइम के लिए एक्सेलरेट कर रहा है तो टी माइनस टी नॉट टाइम के लिए डी एक्सेलरेट करेगा। तो फिर इन दोनों ट्राइंगल में वेलोसिटी जीरो से मैक्सिमम होने में जो टाइम लगा, मैक्सिमम होने में जीरो से मैक्सिमम जितनी हुई वेलोसिटी उतना मैक्सिमम से जीरो हो। तो इस वाले ट्राइंगल में tan ऑफ दिस एंगल विल बी, मतलब ये बेस है टी नॉट और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा टी नॉट, तभी इसका जो टेंजेंट की वैल्यू आएगी, स्लोप जो आएगा वो अल्फा आ जाएगा। उसी तरह मुझे दूसरे वाले ट्राइंगल में स्लोप अगर निकालना है तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता, बेस निकालना है, बेस इज टी माइनस टी नॉट, है ना, इतना टाइम टी नॉट है तो इतना टाइम टी माइनस टी नॉट, तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए बीटा, बिकॉज बीटा इज द स्लोप ऑफ दिस। सो बीटा को लिख सकते हैं वर्टिकल अपॉन बेस,
तो वर्टिकल हो जाएगा बीटा इंटू टी माइनस टी। तो अल्फा टी नॉट भी वेलोसिटी है मैक्सिमम, बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट भी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल होना चाहिए बिकॉज बोथ आर मैक्सिमम वेलोसिटीज। दोनों हमने अलग अलग ट्राइंगल से निकाला, तो यहाँ से हम फिर टी नॉट की वैल्यू इक्वेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ निर्मित? हाँ सर। ओके, इसके बाद तो फिर एरिया निकाल लेंगे, तो वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, 1D मोशन है तो। सर बट ग्राफ के बिना कर सकते हैं? ग्राफ के बिना, ग्राफ के बिना भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अच्छा, ग्राफ के बिना करने का ट्राई करते हैं। हो तो जाएगा, ये सॉल्व तो हो ही जाएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा से पहले एक्सेलरेट किया, फिर बीटा से डी एक्सेलरेट किया। बीटा डी एक्सेलरेशन तो माइनस बीटा एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो अगर टी नॉट टाइम तक के लिए एक्सेलरेट कर रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे स्पीड 0 थी, इनिशियल स्पीड 0 थी। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट विल बी अल्फा टी नॉट। तो फाइनल स्पीड फिर से 0 हो जाएगी, फाइनल स्पीड फिर से 0 हो जाएगी। तो बीटा मतलब सेकेंड इंटरवल के लिए देखा जाए, इस इंटरवल के लिए तो एक्सेलरेशन अल्फा टी नॉट से 0 हो रहा है विथ माइनस बीटा टी रिटार्डेशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अल्फा टी नॉट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो v इज इक्वल टू u माइनस ए टी वन यू प्लस ए टी में इनिशियल वेलोसिटी है अल्फा टी नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन है माइनस v। ठीक है, बट यहाँ पे t नहीं लिखेंगे, टाइम कितना है? t माइनस टी नॉट, बिकॉज हमारा t इज इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा क्लॉक माइनस बीटा एक्सेलरेशन के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस बीटा इंटू टी माइनस टी नॉट। ये पार्ट क्लियर है निर्मित? टी माइनस टी नॉट क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ सर, इधर तक मेरा भी आया था। तो यहाँ से टी नॉट निकाल लेंगे, टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। ओके, इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल निकालना। तो अगेन यहाँ इस पोर्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आ जाएगा, लेट्स कॉल इट x1। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ अल्फा टी नॉट का स्क्वायर। और x2 निकाले तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? अल्फा टी नॉट इनटू टाइम, कितना टाइम लगा? दैट इज टी माइनस टी नॉट, कितने टाइम के लिए ट्रैवल कर रहा है, प्लस हाफ बीटा माइनस हाफ बीटा क्योंकि नेगेटिव है, इनटू टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट इज x1 प्लस x2। तो टी माइनस टी नॉट को ना डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। टी माइनस टी नॉट यहाँ से आ जाएगा सीधे, दैट इज अल्फा टी नॉट बाई बीटा। कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, तो सेम ही स्टेप्स फॉलो करते हैं। क्लियर हुआ निर्मित? हाँ सर। सर इसमें से फिर टी नॉट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी? नहीं नहीं, टी नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट करनी पड़ेगी, सॉल्व करते हैं। ये हो ओके सर। जाएगा हाफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर, टी माइनस टी नॉट हो जाएगा अल्फा टी नॉट बाई x2 की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो टी माइनस टी नॉट मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ अल्फा टी नॉट बाई बीटा। अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर माइनस बीटा बाई 2 टी माइनस टी नॉट हो जाएगा अगेन अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। तो बीटा बीटा कैंसिल, दिस विल बिकम अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर बाई 2 बीटा।
ये दोनों मिलके हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ। यहाँ से अल्फा टी नॉट स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा बाई बीटा आ जाएगा। तो टी नॉट को पुट कर सकते हैं, टी नॉट आ जाएगा बीटा स्क्वायर टी बाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। 1 प्लस अल्फा बाई बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई बीटा। ये कैंसिल आउट, एक बीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमेट्रिकल रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम टी। ऑप्शन है अल्फा बीटा बाई टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर बिकॉज टी नॉट का स्क्वायर। तो ये सब्जेक्टिव मेथड है ना, मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक मीन्स मैं जो ट्रिक यूज करता था वो कि सिंपल वैल्यूज ले लिया अल्फा और बीटा, तो उससे बड़ा आसान हो जाता है। अल्फा को 2 ले लिया, बीटा को 3 ले लिया, तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी दो वैल्यूज के लिए करेक्ट आंसर आएगा, फिर वो फॉर्मूले से चेक कर सकता है। बट अभी के लिए लर्निंग मोड में आई रिकमेंड कि हाँ सब्जेक्टिव मेथड यूज करना चाहिए। बट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुकलेट में बहुत सारे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आइडिया लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत कम सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय वैल्यूज पुटिंग। अल्फा को 1 ले लिया, बीटा को -2 ले लिया, अल्फा को 2 ले लिया, माइनस बीटा को -3 ले लिया, फिर सारे ऑप्शन में पुट करके सिंपल वैल्यूज डालने हैं, क्योंकि फिर ऑप्शन अगर बड़े वैल्यूज ले लिए तो ऑप्शन फिर जल्दी कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। 9 तो बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 किसी का आंसर आयो? हाँ सर। ओके, 5 आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? भारवी, व्हाट्स योर आंसर? Arrange, sir. ओके, फोर्स दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दैट विल बी I प्लस 3/2J प्लस 5/2K। तो अगेन x का मोशन अलग, y का मोशन अलग, z का मोशन अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं। x के लिए हाफ AT स्क्वायर लिखें अगर, सो हाफ इंटू 1 इंटू टाइम 4 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 3/2 इंटू टाइम का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 5/2 इंटू टाइम का स्क्वायर। तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये 20 आ रहा है, ये 16/2 8 आएगा, ये 12 आएगा। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यूटी में एक्स नॉट और यूटी दोनों ही जीरो है, सिर्फ हाफ AT स्क्वायर ना। बस ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स इंटू टी स्क्वायर।
एक्सेलरेशन y अलग होगा, एक्सेलरेशन इन z अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो पिछले वाला ही है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर 12 दिया हुआ है एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये 6 दिया हुआ है। दोनों को ऐड करके मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री चाहिए, ये 12 ये 6 ये 90 डिग्री, तो ये एंगल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 6 cos थीटा हाफ हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। मुझे चाहिए एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। फ्लो का डायरेक्शन वर्सेस, फ्लो का डायरेक्शन ये है, फ्लो का डायरेक्शन वर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इन विच मैन स्विम्स, तो ये हो जाएगा 120। पिछला वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट करके पूछना।